बी अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। हमने बताया था कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होने के लिए आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों पे कमांड होनी चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। और फ्रंट एंड में जैसे कि हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में HTML। आज हम शुरू करने वाले हैं HTML को। HTML is an acronym which is stand for Hypertext Markup Language. Language because this is used for communication. Hypertext, which means text within text. Hypertext refers to the way in which web page HTML are linked together. Thus, the link available on the web page is called hypertext. What is HTML? HTML is a standard markup language for creating web page. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML describes the structure of web page using markup. HTML elements are building block of HTML pages. HTML elements are represented by tags. HTML tags label piece of content such as heading, paragraph, table, and so on. Browser do not display the HTML tag, but the use of them render the content of the page. History of HTML. In late 1980s, the physicist Tim Berners-Lee, who was a contractor at CERN, proposed a system for CERN researchers. In 1989, he wrote a memo proposing an internet-based hypertext system. Tim Berners-Lee is known as the father of the HTML. Friends, here is the basic HTML document in which all these are the tags which we are using. Doc type, HTML, head. Head is a basic tag which is used in HTML document, and then title. Here we write the title of the web page. Then we close the head, and next we have the body is the main part of the HTML page. All the content which we are writing in the body is all the documents or content which is shown in the HTML page is written in the body. So if we are talking about the HTML tags contain three parts: opening tag, content and closing tag. But some HTML tags unclosed tags. और जो सिंटेक्स होता है उनका वो होता है टैग, देन कंटेंट एंड फिर क्लोजिंग टैग। ये टैग्स सभी के सभी एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं। These are some tags which we are mainly use in the HTML page. Doc type, HTML, head, title, body, headings and paragraph. If we are talking about the HTML basic tags, so all HTML documents must start with a document type declaration, doc type HTML. The HTML document itself begin with the HTML and end with the HTML. The visible part of HTML document is between body. Next है दोस्तों heading tag. Heading tags में दोस्तों हमें 6 अलग अलग टाइप की headings HTML की कोडिंग में मिल जाती हैं, जिसको हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 के साथ डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। देन अगर हमें अपने HTML कोड में कोई पैराग्राफ एंटर करना है, अगर हमें हमारे वेब पेज पर कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो पैराग्राफ लगाने के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे P, एंगल ब्रैकेट P, देन पैराग्राफ एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरह से दोस्तों टैग है ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए वही सेम तरीके से लिखेंगे BR/। अगर किसी भी कंटेंट को हमें सेंटर में प्लेस करना है और इसका टैग होता है सेंटर। अब जो भी कंटेंट आपको सेंटर में प्रिंट करना है उसको आप इसके बीच में लिखेंगे, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। वेब पेज पर किसी भी तरह का लिंक लगाने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करेंगे वो होता है ए। स्मॉल ए की मदद से हम कोई भी लिंक अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। एंड द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। HTML फॉर्मेटिंग की बात करें तो HTML फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। इसके लिए हम कुछ मेन टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बोल्ड। अगर कोई भी कंटेंट आपको बोल्ड में लिखना है तो उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर B से करेंगे, इटैलिक में लिखना है तो I करेंगे, और अगर कुछ स्पेसिफिकली मार्क करना है तो एंगल ब्रैकेट के अंदर मार्क लिखेंगे। दोस्तों अब देख लेते हैं वेब पेज पर किसी भी तरह की इमेज को किस तरह से लगाते हैं। कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज बाय यूजिंग img टैग। तो अगर आपको कोई भी इमेज लगानी है तो आपको सिंपली
IMG इमेज, SRC इमेज का पूरा URL या जो भी इमेज का लोकेशन है वो, अगर आपको इमेज की विड्थ और हाइट सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं इमेज की विड्थ और हाइट लिख करके। टू बी अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, हमने बताया था कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होने के लिए आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों पे कमांड होनी चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। और फ्रंट एंड में जैसे कि